If you're getting married in next 6 months, this video is going to literally save your bridal skin and makeup. Hi, I'm Nikita Arora, a luxury bridal makeup artist and an educator. I am here today to guide you for your ultimate skincare guide, what to do exactly 6 months before your wedding day. So watch the video till the end, and if you're new here, do subscribe our channel. 6 months is the ideal time to start your complete skincare and hair care journey. But today we are going to talk about only skincare. So I am going to take you through a step-by-step guide of full 6 months, what you need to do. So stay in the video through the end and see what you are missing in your routine. It's time to build a simple, consistent skincare routine. No fancy treatments. No facial will give you that instant glow what that 6 month skincare routine will do to your skin. So I'm going to talk backwards. This is the 6th month that is left for your wedding. Like, we have 6 months left, but this is the first month where we are standing in 6 months. So this is the time that you need to identify your skin, go to a dermat, check whether your skin is in a good condition or no, what treatment does it require, build a lifestyle that will not give you acne, allergies and rashes, and also please take care of your water intake and sleep. So if you don't believe to going to a dermat, what you can do is you can identify your own skin, build a simple skincare routine like CTMS, that is cleansing, toning, moisturizing and sunscreen. And if you believe that cleansing, toning, moisturizing and sunscreen are not doing enough job, then you can go to a dermat, see what's wrong. Like, I'll give you an example. My bride who had a flawless skin but had a tiny bumps over her face, and she tried salicylic acid, she tried niacinamide, she tried hyaluronic acid, nothing was working for her. But then she went to a dermat. Her dermat suggested all the products, all the skincare steps, all the diet also she needed to do. So she took care of all those things, and finally she got into a routine where all the bumps disappeared. So this is the right time to identify and create a skincare routine that fits you. So it's 5th month from your wedding day now. जैसे कि आपने देखा कि हमने पहले स्किन केयर सारा कर लिया है, डर्मेट के पास चले गए, एक रूटीन सेट हो गया है. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? बिफोर इवन योर आउटफिट एंड ज्वेलरी, वेन्यू अगर आपका बुक हो चुका है तो प्लीज गो अहेड एंड बुक योर मेकअप आर्टिस्ट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बुक योर मेकअप आर्टिस्ट in 5 months in advance. Why? I will tell you as a makeup artist, because when my brides give me 5 months time, I segregate that time and make them understand that what they need to make changes to their current routine and to look flawless on their D-Day. So when the bride comes to me in 5 months advance, I first look at her skin, look at her hair, and if she's already under a dermat, I don't disturb that routine. But if she's not, I will give her one of my best skincare routines and skincare suggestions that I think it will fit her the best. And इसके बाद मैं उनका पूरा लुक एनालाइज करूंगी कि उन्हें क्या करना है, कैसे दिखना है, उनके दिमाग में क्या रेफरेंसेस है, क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे ट्रेंड सेट हम कर सकते हैं नया, या उनको एक पर्टिकुलर वे में दिखना है और उस वे में वो अच्छी लगेंगी या नहीं लगेंगी. अगर नहीं लगेंगी तो हमें क्या चेंजेस करने हैं ताकि वो वैसी अच्छी दिखे. तो ये सारी चीजों के लिए चाहिए होता है टाइम. अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट को 5 महीने का टाइम दोगे तभी हम ये कर पाएंगे. से सपोज मेरे पास एक ब्राइड आती है जो राधिका मर्चेंट की तरह उसकी बॉडी है और उसको राधिका मर्चेंट जैसा दिखना है शादी के दिन. सो आई विल सजेस्ट हर कि आप हेयर कलर ऐसा कर लो, आप फेशियल हेयर रिमूव कर लो, आप थोड़े से फेशियल ट्रीटमेंट्स, हाइड्रा फेशियल वगैरह करवा लो, वाटर इनटेक, फूड इनटेक, फ्रूट इनटेक आपका अच्छा रखो. सो ये सारी चीजों के लिए टाइम चाहिए होता है. फिर मैं देखूंगी उसका विजन क्या है, वो क्या आउटफिट खरीद रही है. I always give freedom to brides to wear whatever they want. I'm not a makeup artist to tell them कि no, you wear Nita Lula, you wear Sabyasachi, you wear Manish Malhotra, तो ही मैं आपका मेकअप करूंगी. जी नहीं, आपको जो पहनना है आप पहनिए. हाँ, ज्वेलरी में मैं बोलती हूँ एक सजेशन हम जरूर देते हैं. तो जैसे अगर ब्राइड आती है मेरे पास एक आउटफिट लेके और बोलती है मैंने आउटफिट लिया है, मुझे वो अपना फोटो दिखाती है, वो मेरे सामने लाइव खड़ी होती है, तो मैं उसको देख के बोलती हूँ कि आपका नेक लॉन्ग है तो आप चोकर सेट पहनो, अगर आपका नेक शॉर्ट है तो आप चोकर सेट मत पहनो, आप थोड़ा बैठा हुआ हार पहनो. अगर आपका फोरहेड ब्रॉड है तो आप मांग टीका बड़ा वाला पहनो, अगर नहीं है तो छोटा वाला पहनो. फेस छोटा है तो नथ छोटी पहनो, फेस बड़ा है तो बड़ी नथ पहनो. ये सारी चीजें मैं एनालाइज करती हूँ उनके आउटफिट और फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से और फिर उन्हें सजेशंस देती हूँ. इसके लिए आपके पास मेकअप आर्टिस्ट के पास टाइम होना चाहिए आपके साथ ये सारा डिस्कशन करने के लिए. आप बुक ही करोगे 15 दिन 20 दिन पहले तो मेकअप आर्टिस्ट आपको कुछ भी सर्विस एक्स्ट्रा नहीं दे पाएगा.
साथ ही में जब हमारा ज्वेलरी डिस्कशन हो जाता है उसके बाद मैं उनको हेयर सजेस्ट करती हूँ। हेयर उनको कितना कट करना चाहिए, ट्रिम करना चाहिए, कलर करना चाहिए, और केराटिन, सिस्टीन, स्मूथनिंग वगैरह मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ ब्राइड्स को, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है उस दिन हमें जितने रफ टेक्सचर के बाल मिलेंगे उतना बालों में हम अच्छी हेयर स्टाइल क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन अगर बाल ज्यादा स्मूथ हुए तो हम भी उसमें टेक्सचर ऐड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ब्राइड्स प्लीज डोंट डू एनी काइंड ऑफ सिस्टीन, केराटिन, स्मूथनिंग बिफोर योर D-Day. It is not going to help. Okay, now why another reason to book makeup artist 5 months before? Good makeup artist gets booked very fast and one makeup artist can be there at one place one at a time. तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हम भले बुकिंग ले लेते हैं दिन में 2 या 3, लेकिन हम वो सारे डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के लेते हैं, एंड यू गाइज विल नॉट बिलीव, जब आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ मेरे पास एक ब्राइड का मैसेज है जिन्होंने मुझे बोला था कि मैं आपको बताती हूँ 2 दिन में, एंड शी डिड नॉट बुक, एंड yesterday one bride came and she booked and we did not had the room to fit her in, and I was feeling so bad and she was like नहीं कुछ एडजस्ट करो, कुछ एडजस्ट करो। मैंने बोला मैम अब एडजस्ट आप ही को करना है, आपको लेट या थोड़ा जल्दी रेडी होना पड़ेगा क्योंकि वो टाइम स्लॉट तो गया। इसके लिए 5 महीने पहले आप बुक करो। अगर आप नहीं करते हो तो आपके फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं मिलेगा। चूज अ मेकअप आर्टिस्ट दैट मैचेस योर वाइब। उनका जो पेज है उस पे जो ब्राइड्स है, अगर उन ब्राइड्स के जैसा आपको दिखना है तो आपके लिए वो मेकअप आर्टिस्ट परफेक्ट है। फॉरगेट व्यूज, फॉरगेट एडिटिंग, फॉरगेट एवरीथिंग। 2 ही चीजें ध्यान रखो, एक तो वाइब से भी ज्यादा मैं बोलूंगी रिव्यूज, क्योंकि रिव्यूज डिसाइड करता है कि मेकअप आर्टिस्ट की ऑन फील्ड कितना अच्छा है। क्योंकि देखिए फोटोज वीडियोस तो एडिट होके कैसे भी फिल्टर लग के कोई भी लगा देता है, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट उस दिन आपके साथ कैसा बिहेव करता है, कैसा काम करता है, ये क्लाइंट का रिव्यू ही बता सकता है। तो जो आपको पोर्टफोलियो में रिव्यू शेयर करता है ना मेकअप आर्टिस्ट, वो सबसे ऑनेस्ट मेकअप आर्टिस्ट है। वो आपको बेस्ट सर्विस देगा। आप आंख बंद करके उस पर विश्वास कीजिए और उसके रिव्यूज पे भरोसा कीजिए और उन्हें बुक कीजिए। लेकिन ऑन बेसिस ऑफ व्यूज, फॉलोअर्स एंड वाइब ऑल्सो एट सम एक्सटेंट आई विल से डोंट बुक, बिकॉज कई बार वाइब ना हमारे हाथ में भी नहीं होती है। ब्राइड को एक सर्टन तरीके से दिखना होता है, उसको सर्टन आउटफिट, सर्टन ज्वेलरी पहनना होता है। लाइक देयर वाज अ ब्राइड जिनको मैंने पूरा AD यानी अमेरिकन डायमंड का ज्वेलरी बोला था रेड लहंगे पे पहनने के लिए, बट शी बॉट एवरीथिंग। शी कंसल्टेड विथ मी ऑन वीडियो कॉल, हमने सब ट्राई करके देख के परचेज किया, सब किया। उसके बाद उसकी मदर इन लॉ ने बोला नहीं हमारे में तो ट्रेडिशनल ज्वेलरी ही चलेगी, मैं ये नहीं पहनने दूंगी तुमको ट्रेडिशनल ज्वेलरी ही पहननी पड़ेगी। बेचारी सैड, आई फील सो सैड फॉर दैट ब्राइड कि उसको वो सारी ज्वेलरी खरीद कर भी नहीं पहना उसने, और उसने वो दूसरी ट्रेडिशनल ज्वेलरी ली और वो पहनी। तो कितना भी हम चाहें कि हमें वाइब चाहिए एक अच्छा अंबानी लेवल की वेडिंग का हमारे फीड पे, पर वो कई बार हमारे हाथ में नहीं होता है। सो मोर देन वाइब डिपेंड ऑन रिव्यूज। सो नाउ वी आर एट मंथ 4। जब यहाँ से अब आपकी शादी में 4 महीने बचे हैं, तो जब 4 महीने बचते हैं तो आपको करना क्या एग्जैक्टली? दिस इज द टाइम व्हेन यू प्लान योर ट्रीटमेंट्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगर if something goes wrong, you have time to recover from that. Like if you take any facials, if you take any peels, any brightening treatments, any injections, any IVs you take from a dermat, अगर उससे कुछ आपको एलर्जी या रिएक्शन होता है तो आपके पास एटलीस्ट 90 to 120 डेज होने चाहिए रिकवरी के लिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान योर ट्रीटमेंट्स अकॉर्डिंगली। इवन फॉर हेयर, इफ यू आर डूइंग अ हेयर कलर, मुझे ऐसा लगता है हेयर कलर लुक्स गुड आफ्टर 8 to 10 वॉशेस। तो अगर आप एकदम फ्रेश हेयर कलर लेके शादी में जाओगे, एकदम ऐसे ब्राइट हाइलाइट्स और बालियाज या ग्लोबल लेके, वो नहीं अच्छा लगेगा। अगर आप 3-4 महीने पहले करा लेते हो और फिर उसको ट्रिम करते हो, उसको स्पा करा के मेंटेन करते हो, तो शादी के दिन तक बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप जो भी स्किन और हेयर ट्रीटमेंट्स प्लान कर रहे हो सैलून और डर्मेट के पास, प्लीज डू इट on the 4th month of your wedding day. Now we are at the 3rd month of your wedding day. यानी 3 महीने यहाँ से बचे हैं आपकी शादी के लिए। तो एग्जैक्टली अब यहाँ पर मेजर किसका रोल है? आउटफिट, ज्वेलरी, ट्रीटमेंट्स होता है, वो साइड बाय साइड चालू रहता है। लेकिन अब क्या करोगे? मेकअप आर्टिस्ट तो आपने 5 महीने पहले बुक कर दिया, लेकिन अब उस मेकअप आर्टिस्ट के साथ आपका कंसल्टेशन का टाइम आया है। जब आप कंसल्टेशन करते हो, जब आप उन्हें बताते हो कि आपके आउटफिट और ज्वेलरी आ गई है, तब वो डिसाइड करते हैं कि आपका हेयर कैसा करना है, उस दिन लुक क्या रखना है, दुपट्टा ड्रेप कैसा करना है। अगर आप लहंगा पहन रहे हो, साड़ी पहन रहे हो, तो क्या ड्रेपिंग स्टाइल रखना है। आप उन्हें अपना फंक्शन का फ्लो बताते हो, तो वो आपको सजेस्ट करते हैं कि उस दिन ड्यूई बेस रखना है या मैट बेस रखना है, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप रखना है या फ्रेश स्किन लाइक लुक रखना है, क्या ज्यादा चलेगा उस दिन। तो ये सारी चीजें आपकी
तीसरे महीने में बातचीत हो जानी चाहिए मेकअप आर्टिस्ट से और आपको पूरा उसमें क्लैरिटी रहना चाहिए कि उस दिन आप कैसे दिखोगे और आपके क्या क्या फंक्शंस हैं और कैसे कैसे मेकअप और हेयर होगा. सो दिस हैज टू बी डन एंड डस्टेड एंड फाइनलाइज विथ योर मेकअप आर्टिस्ट इन द थर्ड मंथ नंबर 2, यानी अब आपकी शादी में यहाँ से सिर्फ 60 डेज बचे हैं. तो आप क्या करोगे यहाँ पर? दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल टाइम. ठीक है, ये क्यों मैं बोल रही हूँ क्रिटिकल? जो 6 महीने पहले जिनकी आंखें नहीं खुलती हैं वो अब जगते हैं कि अरे कपड़े भी लेने हैं, ज्वेलरी भी लेनी है, मेकअप आर्टिस्ट भी बुक करना है, सैलून भी जाना है, सब करना है उन्हें ये 60 डेज में. और 60 डेज में भी वीकडेज में नहीं, सब वीकेंड में ही करना है उनको. सारे सैटरडे संडे उनके फिक्स होते हैं कि आज ही हम करेंगे, वरना हम इसके आगे नहीं किया तो हमारी शादी ही नहीं होगी. तो ये ऐसी लास्ट मिनट ब्राइड्स के लिए मेरे तरफ से एक टिप है कि आप जो भी डिसीजन इस समय पे ले रहे हो प्लीज उसे 4 बार सोच के लें, इम्पल्सिव डिसीजन ना लें. और दूसरी बात, कोई भी नए ट्रीटमेंट्स के लिए प्लीज मत जाइए इस समय पर. मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ. नए ट्रीटमेंट्स आप करोगे तो आपको बहुत सारा रिएक्शन हो सकता है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है. तो बहुतों को नहीं भी होता है, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कराऊंगी तो कुछ हो जाएगा, जी नहीं, कुछ नहीं होगा. आप अभी जैसे दिख रहे हो, मेकअप आर्टिस्ट एक बेसिक स्किन केयर ले लो घर पे करने के लिए, बट न्यू ट्रीटमेंट्स अभी ट्राई मत करो, न्यू हेयर कलर अभी ट्राई मत करो, या सिस्टीन केराटिन स्मूथनिंग भी अभी ट्राई मत करो. इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. इट मे रिएक्ट इन अ वेरी रॉन्ग वे एंड यू डोंट हैव दैट टाइम टू बेयर. अगर वो रिएक्ट हो गया तो आपके पास रिकवरी टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा. सो बी वाइज. तो अभी हम पहुंच चुके हैं 30 दिन पहले, जहाँ 30 दिनों में आपकी शादी है. वो गाना है ना, हमारी शादी में बचे हैं हफ्ते 4. तो एग्जैक्टली आपकी शादी में यहाँ से अब 4 हफ्ते बचे हैं. तो करना क्या है, अब आपको सिर्फ मेंटेनेंस करना है और रिलैक्स करना है. मेंटेनेंस आप किस बात का करोगे? जो भी आपने प्लानिंग किया उसे मेंटेन रखोगे, सारे डिलीवरीज को पिकअप करोगे, आप आपकी स्किन और हेयर को मेंटेन रखोगे. जो आपकी कंसिस्टेंटली 6 महीने से स्किन केयर हेयर केयर रूटीन चल रही है उसे आप फॉलो करोगे. कुछ भी नया काम आप इन 30 दिनों में तो बिल्कुल नहीं करोगे. हाँ, एक चीज आप कर सकते हो सेकेंड लास्ट वीक में, जब 15 दिन बचे होंगे, कि अगर आप हेयर रिमूवल करते हो तो वैक्सिंग आप 15 दिन पहले कर सकते हो, थ्रेडिंग आप 1 वीक पहले कर सकते हो. बाकी आपको कुछ भी नया काम इन 30 दिनों में नहीं करना है. इट इज टाइम टू रिलैक्स. रिलैक्स भी आपको कैसे करना है? मिनिमम 8 आवर्स की आपको स्लीप लेनी है, आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है और सारी प्रिपरेशंस आपकी हो चुकी हैं. आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपने सबको बुक कर दिया है, बस आप अभी रिलैक्स हो जाओ. 4 हफ्ते में आपकी शादी है. Okay, my girls, that's all for today. And if you are a bride to be and love honest, practical beauty wedding advices, then this is your channel, and I am Nikita Arora here to tell you and help you for everything that you're overthinking. So subscribe my channel and wait for the next video. We post twice a week, and I will see you until next time.